हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, देखो नेट की वजह से हम दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट हो गए। इसमें देखते हैं वो नेट ही नहीं चल रहा है। चल दो, क्वेश्चन आंसर करो जल्दी जल्दी, ये नेट का कोई भरोसा नहीं। उस रूम से हो ही नहीं रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो हम फिर दूसरे रूम में आए हैं। ये अच्छा होगा कि तुम लोग आ जाओ सभी स्कूल, बहुत अच्छा होगा। अगर 16 तारीख से आ रहे हैं मैम। 9:20 में रिपोर्टिंग टाइम लोग का। क्या क्या फिर से बोलो। 17 से बोल रहे हैं कि 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं और 9:20 में रिपोर्टिंग टाइम है। हाँ ठीक है। यस मैम, स्नैपबॉक्स पे आ गया मैसेज। हाँ हाँ, वो अच्छा है। बाप रे बाप, बहुत देखो तो उस क्लास से उस क्लास में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं वो नेट की वजह से। हाँ चलो तो प्रतीक्षा, तुमसे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट। गिव द मीनिंग ऑफ टर्म अर्थिंग। अर्थिंग नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? हम नहीं। प्रतीक तुम म्यूट हो मैम, प्रतीक म्यूट है। प्रतीक तुम म्यूटेड हो, ओपन करो। प्रतीक झा माइक ओपन करो प्रतीक, सुने तब ना। मैम ये हंस रहा है। माइक ऑन करो। हाँ माइक को म्यूट करो, हाँ अनम्यूट करो। हाँ चलो प्रतीक। अर्थिंग, the process of transfer of charge to the earth. हाँ ये सानवी शर्मा, why do we say charges are always मैम वो produced in अनम्यूट air? ही नहीं हो रहा था माइक, पता नहीं क्या हाँ, ब्लैक बग आ नेट की गया। वजह से होता है। चलो सानवी शर्मा, why do we say that charges are always produced in pair? When we rub two objects, for example, when we rub an ebonite rod against flannel and then we place the ebonite rod near some paper bits, it attracts the paper bit. But when we put the flannel near the paper bit, it also attracts the paper bits. Similarly, when we rub the glass rod against silk cloth, both the objects, when placed near paper bits, turn by turn, both attract the paper bits. This shows that the charges are produced in pairs. Very good answer. Sanvi, have you sent question answer of this chapter on my personal number? Yes, ma'am, I have sent it. Achha, it's okay. Pratyush Raj, describe a simple experiment to show that total charge on the pair object that have been rubbed together is 0. Ma'am, material required: silk cloth, ebonite rod and flannel. Procedure: when the flannel is Procedure rubbed, नहीं, Pratyush, wait. Procedure लिखते हैं प्रोसीड्यूर, लेकिन उसको पढ़ते हैं प्रोसीजर। फिर से बोलो प्रोसीजर। Procedure: when the flannel is rubbed with ebonite rods equal and produce charge.
developed in both flannel and ebonite rods, as the charge developed in both objects are opposite, so they may attract each other. Conclusion. So we can say that the net charge developed in both the charges. Total charge against develop. ये क्लियर हो रहा है प्रत्युष? आंसर क्लियर हो रहा है? हम जो बोले वो क्यों नहीं है वो करके रखे तुम लोग? उदित बोलो तुम. Describe a simple experiment to show that. A glass rod is taken and rubbed against the silk cloth. These two objects get charged up. In the same way, ebonite rod and gets charged up when it is rubbed against flannel cloth. If the silk cloth and glass rod or flannel cloth and ebonite rod are simultaneously brought near the tiny pieces of paper, the combination doesn't attract them. The combination therefore behaves like an uncharged object. This happens if the two objects carry equal but opposite charges. So the total charges on the pair of rubbed objects is 0. हाँ, very good. यही आंसर लिखना है सभी को. अनिका सिंह, why does a charged object lose its charge when touched? Ma'am, the charged objects. Ma'am, can you repeat the question? Why does a charged object lose its charge when touched? Charged objects lose its charge when touched because of the process of induction. Due to? Due to induction. Induction से नहीं होता. नहीं, conduction. Ma'am, Induction नहीं. Conduction. Conduction by mistake. Conduction. हाँ, conduction बोलेंगे. सुमिता शर्मा. भेजी थी इसका आंसर. हाँ. Yes, ma'am. मैम इंडक्शन नहीं हो सकता. प्रोसेस उसका तो यही है ना, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग इट विदाउट चार्ज ऑब्जेक्ट. सुनो ना, ये टच करना इंडक्शन है ही नहीं, वो तो कंडक्शन है. When one object physically come contact with the other object and share the charge of the charge object, that is conduction. It is not induction. In the case of induction, only the separation of charges takes place. चार्ज का सेपरेशन होता है. तो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों डिफरेंट है ना. कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सेम कैसे है? इंडक्शन केवल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट. इंडक्शन क्या है? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर देयर इज सेपरेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. वो क्या हो गया? इंडक्शन. नहीं, कभी कभी अंतराक्षरी जब होता है क्लासरूम में, तो अगर लेडी टीचर है तो लेडी टीचर के इन्फ्लुएंस में वो क्या होता है कि बॉयज को अलग करवा देती हैं, गर्ल्स को अलग, अपने गर्ल्स के तरफ चली जाती हैं. ऐसा होता है ना. तो ये हुआ इंडक्शन. हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है बहुत बार. बहुत हुआ है ना. तो देखो, तो इंडक्शन क्या है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड दैट इज इंडक्शन. चार्जेस आर ऑलरेडी present in the metallic object, and when the charge body come, according to the charge body, separation of charges takes place. So this is induction. And whereas in the conduction, when the one object physically come in contact with the other object, that every day we charge the mobile, so it is conduction. When we have charged the mobile, so we put the mobile in contact with the electric wire, and whatever current coming to our house, that current shared by the mobile battery. This is conduction. है ना? When we have iron the cloth, so we put the pin of the iron inside the socket of the electric current,
for sharing the charges, that is conduction. वो कंडक्शन है कि एकदम फिजिकल कांटेक्ट में आया तो वो कंडक्शन हुआ। क्लियर? चले? यस मैम। प्रतीक क्लियर? Yes, अब ma'am. इंडक्शन एकदम 12th क्लास तक ये सब पढ़ना होगा। वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम क्लियर होना है। इंडक्शन जब भी होगा किस बॉडी में होगा? इंडक्शन किस में होगा? कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। इंडक्शन Ma'am, charged Metallic bodies body, to metallic uncharged body. body. जो charged मेटल से body बना से- हो ऑब्जेक्ट, metallic मेटल object ऑब्जेक्ट that is Ma'am, made up metallic of object. metal. मैम मेटेलिक हाँ, मेटेलिक ऑब्जेक्ट में होगा इंडक्शन। और ये चार्जिंग बाय रवि ये हो सकता है किससे? वो नॉन मेटेलिक बॉडी, प्लास्टिक, वुड, हाँ नॉन मेटेलिक। हाँ, तो ये देखिए ये में हो सकता है। हाँ सुनो, से चार्ज क्या बोल रहे हैं उदित? बोलो फिर से। हम लोग के बॉडी में रब करने से चार्ज आ सकता है। ये आता नहीं, ये बॉडी में तो बॉडी पूरा तो चार्ज नहीं होता है बेटा, लेकिन कभी कभी यही तो कहे ना, एक्सपीरियंस की बात है कि जब तुम सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनोगे ना, तो हमारे बॉडी तो हो गया, उसमें मेटल्स ये भी है ना, मेटेलिक पार्ट भी है, सब कुछ है, कंडक्टर है, लेकिन हेयर्स जो है, सबसे ऊपर वाला हेयर्स जो है, रोआ हेयर्स, ये इसका हेयर्स, तो ये जब क्लॉथ के कांटेक्ट में आता है, दोनों के बीच रबिंग होता है, तो देखोगे कि ऐसे क्लॉथ चिपक गया। इसका एग्जांपल तो बताए हैं कि मार्केट में जो है ना सिंथेटिक क्लॉथ जो आता है, हम देखे हैं प्लाजो, बहुत ये वाला बताए हैं ना, इसीलिए ना बताए हैं कि हमेशा तुम लोग याद रखोगे कि मार्केट में जो है सिंथेटिक प्लाजो अवेलेबल है। और गर्मी के दिन में कोई बच्चा जो है ना अपना पूरा ड्राई कपड़ा पहन के उसको पहनेगा तो वो पैर में चिपकेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? रबिंग होगा, रबिंग बिटवीन द हेयर्स ऑफ द स्किन एंड द क्लॉथ्स। So then friction takes place and due to friction charging of object takes place. वो जो कपड़ा भी चार्ज हो जाएगा, हम लोग का हेयर भी चार्ज हो जाएगा। हम लोग का ये क्यों चार्ज हो जाता है बोलो? ये चार्ज ही ना हो जाता। ये सब इसीलिए तो प्रैक्टिकल बात बताए हैं जो हम लोग रोज करते हैं, एकदम दूर हटा के नहीं, बुक से नहीं, कि ये जो है हम शैम्पू कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं हेयर को, जहां कहीं जाना होता है पार्टी में, और ड्राई हेयर करने के बाद क्या करते हैं? कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग करने से कॉम्ब भी चार्ज होता है, रबिंग होता है। ये कैसा मेटेलिक है? नॉन मेटेलिक है ना, ये नॉन मेटेलिक है। और इसको जब प्लास्टिक कॉम्ब से कॉम्बिंग करते हैं तो दोनों का फ्रिक्शन होता है, चार्जिंग होता है, हेयर भी चार्ज हो जाता है, कॉम्ब भी चार्ज हो जाता है, कॉम्ब चार्ज हो जाता है। तो उसको तुम लोग देखे, एक्सपेरिमेंट भी किए हो कि वो जब चार्ज हो जाता है तो वो छोटे छोटे पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ, और ये हमारा हेयर जो चार्ज हो जाता है, यहाँ ध्यान दो उदित, अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हेयर जो चार्ज हो जाता है तो वो अच्छा लगने लगता है, दिखने लगता है एकदम क्लाउड जैसा हेयर। तो इसीलिए ये भी बात तुम लोग को बताए हैं कि इवेंट की पार्टी में, जहाँ हॉल में फंक्शन पूरा होता है, तो गर्ल्स लोग मैंने कम एज की लड़की लोग, हम लोग तो जहाँ बैठे तो बैठ गए, और हम लोग का नहीं, मतलब जिसको इंटरेस्ट है कि हम अच्छा शो ऑफ करें, अच्छे लगे, तो तुरंत वो जो है वो कौन रूम होता है, उसको कहते हैं वेडिंग रूम या कुछ कहते हैं, तो उसमें यूज करके कॉम्बिंग करता है लोग। किस लिए? कि हेयर जो है चार्ज हो जाए। When the hair will acquire the same charges, the repulsion will take place, and due to this repulsion, the wave of hair is formed. है ना, एकदम वेव क्लाउड हेयर का बन जाएगा। जो हेयर जो है अलग अलग रहेगा, तो लगेगा कि बाल ज्यादा है। देखो मेरा बाल तो सबूर गया है, तो हम भी करते हैं कभी कभी, बाल मेरे पास है ही नहीं, तो हमको भी शो ऑफ करना रहता है कभी कभी ओकेजनली कि मेरे पास भी बाल है, तो उसके लिए हम भी जाकर के कॉम्बिंग करते हैं, हेयर को उस दिन शैम्पू करते हैं, ड्राई करने के बाद जो है कॉम्बिंग करते हैं, ताकि मेरा हेयर क्या हो जाए, क्या हो जाए? वो प्रत्युष बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। मैम चार्ज सिमिलर चार्ज, मैम सिमिलर चार्ज चार्ज हो जाएगा।
तो हेयर्स जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो लगेगा कि अरे ये बाल तो बहुत ज्यादा है ना। लंबा लगे। इस बात को बताया कि कभी बच्चे भूले नहीं। अब चलो क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये सब बात स्टोरी जब बताते हैं ना, उसका रीजन रहता है यही कि बच्चा कभी लाइफ में बूढ़े भी हो जाओगे ना तो ये बात नहीं भूलोगे और दूसरे को भी बताओगे। मैम एक डाउट है। बोलो ना, डाउट क्लियर कर। मैम पानी में करंट तेज क्यों लगता है मैम? करंट पानी में क्या होता है मैम? तेज क्यों लगता है? तेज क्यों लगता है? क्या बोल रहा है कोई? बोलो फिर से। इलेक्ट्रिसिटी पानी में इतनी करंट पानी के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रिसिटी हमें तेज क्यों लगती है? अरे देखो ये पढ़ाई गुड कंडक्टर। सुनो, पहले प्रत्युष पूछा तो कहा, सुनो मेरे सर थे वो ऐसा ही करते थे, पहले स्टार्टिंग करते थे सेम डिजॉल्व सेम। जो जैसा रहता है ना, जो जैसा रहता है वो अपने जैसा बना देता है। जिस बच्चे के ग्रुप में जाओगे ना, मम्मी कहती होगी कि नहीं अच्छे बच्चे के साथ बैठो, ऐसे कितने की मम्मी कहती है? मैक्सिमम की मम्मी अच्छे बच्चे के साथ, अच्छे बच्चे के साथ बैठो। ये सेंटेंस सभी की मम्मी का होता है। ये बात होता है कि सेम डिजॉल्व सेम। एक जो जैसा प्रकृति का होता है, जो जिस नेचर का होता है उसको डिजॉल्व कर लेता है। तो करंट जो है जैसे ही जो चार्ज फ्लो करने लगता है वाटर में, तो वाटर में मिनरल है तो वो मिनरल तो पहले कंडक्ट करता है चार्ज को, और जैसे ही मिनरल के थ्रू जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, सेम टाइम वाटर भी क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। और वाटर कैसे डिसोसिएट होता है? डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन होता है। ये वाटर है तुम्हारा H2O है, और जैसे फ्लो करता है तो इसका ब्रेकिंग होने लगता है। H+ आयन और OH- आयन, ये आयन ही हो गया है ना। These ions conduct electricity। ये जो आयन जो हो गया H2O जो है आयन में ब्रेक कर गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और किसके वजह से आया? उसमें whatever mineral dissolved in the water, due to which electricity flow through the water. But when the water is electricity started flowing through the water molecules started dissociating. Water dissociate into H+ ion and OH- ion, due to which electricity started flowing through the water, and if someone dip the hand into the water, it will give the electric shock। जैसे पानी में हाथ डालोगे तो वो तो एकदम देखो उतना सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, वो सारा डिसोसिएट हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट कैरी ऑन करने के लिए रेडी है। क्लियर? यस मैम। हाँ, अब चलो नेक्स्ट। अनिका से तो पूछ चुके हैं क्वेश्चन। अनिमा शर्मा, चल तो अनिमा, ये can we say that a charge object attract an uncharged object by first charging it through induction? Explain your answer. Yes, we can say that a charged object attracts an uncharged object by first charging it through induction, because in the process of induction, the charged object share the equal and opposite charge to the uncharged object, and that's why attraction takes place. Very good. Very good, Anima Sima. Very good, not excellent. है ना? Excellent. बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। फैन ही ऑन करना भूल गए थे, बहुत गर्मी फील हो रहा था। सुमिता शर्मा। यस मैम। हाँ, ये state the sign of charge acquired by an object when it is charged by positively charged rod through conduction. Only you explain about the conduction.
Ma'am, can you please repeat your question? I'm saying state the sign of charge acquired by an object when it is charged by positively charged rod. उधर है, बाद में कर देते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I am Ah. saying conduction. When an uncharged object come in contact of positively charged rod, the same charge showed by the uncharged object. So uncharged object acquired positive charge, whereas induction, when an uncharged object come in front of or near the positive charged rod, the rod will induces equal and opposite charge on uncharged object, so the uncharged object will acquire negative charge. Very good, excellent answer. सब अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे, सुन के बहुत खुशी मिलती है. आदित्य आनंद थोड़ा वीडियो दिखाओ बेटा. आदित्य आनंद थोड़ा जगह दिखाओ हमको. आदित्य आनंद नहीं दिखाओगे. हर्षित मिश्रा, हर्षित, इतने ही लोग एडेड हैं. राधिका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैम पूछ रही है. अब फिर नेक्स्ट डे 16 से कहाँ जाओगे सब? क्वेश्चन आंसर तो पूछेंगे ही पूछेंगे. राधिका 7B नहीं, ठीक है. हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं. ज्वाइन नहीं हुआ. क्या प्रतीक? मैम एक क्लास का जितना बच्चा होता है वो भी नहीं हुआ. हाँ, क्वेश्चन आंसर हो रहा है ना बेटा, पूछ रहे हैं तो वो लोग क्यों सुनना भी नहीं चाहता. कितना अच्छा से तुम लोग सुना रहे हो, हमको इतना खुशी मिल रही है कि हम लोग से फार बेटर तुम लोग. मैम 17 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेंट हैं. मैं भी वही इतना अच्छा खुशी मिल रहा है कि हमारा भी कंट्री जो है ना जापान की तरह 2030 में आने लगेगा. 21 में 22 में 22 तक था तुम लोग के वजह से. देखो, इस देश में साइंस टेक्नोलॉजी का ही डेवलपमेंट चाहिए. मन में अगर कर लेंगे बच्चे तो ये हम लोग किसी से कम नहीं. एक बात बता देना, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना जरूरत है. बताएं, बहुत ब्रेन है शार्प, बहुत बच्चों का ब्रेन शार्प है. गांव में जाओगे सबका ब्रेन शार्प है, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिला है. शाम होते ही वो लोग सो जाते हैं, जबकि गांव में तो धूप ऐसा ही रहता है जैसे आज अभी पटना में है. जरूरत क्या है बेटा कि डिवाइस बनाने का. वो जो सेल बना हुआ है काफी कॉस्टली है. ऐसा डिवाइस बनाने का जरूरत है जो कि इजी वे में ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर ले और ट्रैप कर को इजीली जो है इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. इसका जरूरत है. और ये जहां हुआ वहां हमारा भी कंट्री जो है ना वो अमेरिका से कम नहीं रहेगा. रसिया से साइंस टेक्नोलॉजी में कम नहीं रहेगा. हम लोग के लिए बस यही चाहिए. तो ये बात हमेशा तुम लोग ध्यान में रखना. अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? चलो ये स्टार्ट करते हैं. इन लोगों से सानवी से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछे थे. सानवी आप क्वेश्चन ये आंसर करो. Is it important to have very good contact between the lower end of the lightning conductor and the earth? If so, why? सानवी शर्मा. मैम क्या नहीं आंसर? जस्ट वेट ना. क्वेश्चन ये चैप्टर को आज खत्म करेंगे, दूसरे चैप्टर में ही करेंगे. सानवी शर्मा, is it important to have very good contact with the lower end of the lightning conductor and earth? If so, Sorry, ma'am. why? Ma'am, I am not prepared for this answer. Ma'am, can I answer? Anika. Ma'am, can I answer? उदित, चलो आंसर करो. आंसर करो. It is important to जो have हम a very सेंड good किए उसको contact. एकदम लिख लेना सभी, जो हम क्वेश्चन आंसर सेंड किए. चलो उदित,
It is important to have a good contact between the lower end of a lightning conductor, that is the flat, thick metal structure, because the lightning charges flow on through it, deep down into the earth and not through the structure. The structure is therefore safe from the damaging effects of lightning. Pratyush Raj, same question. Is it important to have very good contact with Ma'am, may I answer? यहाँ देखिए लोअर इंड, ये लोअर इंड है और ये मेरा हाथ अर्थ है। और क्वेश्चन सुनिए, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव वेरी गुड कंटैक्ट between the lower end of the lightning conductor and the earth? If so, why? Yes, ma'am. It is indeed important to have a very good contact between the lower end of a lightning conductor and the earth, because the total charge coming from lightning needs to be passed to the earth. This is necessary to save the building from damage. In case of floating contact, some of this charge may be get transferred to the building, which can result in loss of life and property. वाह, excellent answer. ये तो एक लाइन जो बोला कि if the there is no tight contact with the earth and the lower end, the charge will flow through the building. हाँ, ये तो हम भी नहीं लिखे एक लाइन। देखो हम बोले ना कि तुम लोग एक्सलेंट हो, हम टीचर ही हैं, और तुम लोग सब साइंटिस्ट बैठा हुआ। तो ये जो है देखो कितना अच्छा आंसर। चलो इसको मेरे पर्सनल पर सेंड कर देना, जो नहीं लिखा होगा ये आंसर लिखेगा, ठीक है? पर्सनल नंबर पता है प्रत्युष? इधर ध्यान दो, भाई से मत उसको मुंह मत चिढ़ाओ। वो फिफ्थ से ही आपका नंबर लिया हुआ है मेरे पास आपका नंबर। मैम वो 5th क्लास से आपका नंबर रखा हुआ है। रखे हुए हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो अब फिर आगे चले 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन को, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करें? अनिका सिंह। अनिका, a charged plastic comb is brought near the another similarly charged and suspended plastic comb A. Then comb A would remain unaffected, move towards the comb B, move away from comb B, and start oscillating. Move away from comb B. Move away from comb B. Very good. Next. ये हर्षित मिश्रा। हर्षित, listen very carefully. A student is provided with 4 objects: a plastic comb, a copper rod, a rubber balloon, a woolen cloth. The object that cannot be easily charged up by rubbing is the object labeled as A. A में है plastic comb, B में है copper rod, C में कौन सा है? रबर बैलून, और D woolen cloth. Which one is the correct answer? हर्षित मिश्रा। देखो वीडियो भी ऑफ कर दिया। हर्षित। नो मैम, उसका वीडियो ऑफ नहीं है मैम, ब्लैंक हो गया। नहीं, हम नहीं देख पा रहे हैं उसको। मैम ब्लैंक हो गया, ऑफ नहीं है। टाइम हो गया, जल्दी अच्छा आंसर करो। प्रतीक, तुम हैंड रेज किया ना, जल्दी आंसर करो तो क्या होगा? मैम अ रबर बैलून। नहीं, ये सुमिता शर्मा। सुमिता शर्मा। यस मैम, अ कॉपर रॉड। अ कॉपर रॉड। हाँ, अनिमा। अब फिर लिसन वेरी केयरफुली। कॉपर रॉड इज अ कॉपर रॉड दैट कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग। मेटल को चार्ज नहीं कर सकते हैं रबिंग से, क्योंकि जब चार्ज करेंगे ना मेटल, मान लो कि ये मेरा ये मेरे हाथ में ये डस्टर जो है मेटल का बना हुआ है, जैसे रबिंग करेंगे ना तो चार्ज करता है, जो ट्रांसफर तो होगा, लेकिन जो बाकी चार्ज होगा ना एक्स्ट्रा, उसके थ्रू फ्लो कर जाएगा। तो इसमें इसको चार्जिंग करने के लिए हमको इंडक्शन करना होगा। इंडक्शन मेथड से चार्ज करेंगे, आइदर इंडक्शन और कंडक्शन, या इसको इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, और फिर किससे?
conduction से it should be put in contact with the charge object, or it should be brought under influence of the charge object. ये दो केस में ही ये चार्ज हो सकता है और मेटल होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट. ज्ञान प्रकाश. ज्ञान प्रकाश सुन भी नहीं रहा मेरा आवाज. यस मैम भी नहीं बोल सकता है. वाह, इतना मेहनत करके सभी लोग का जानते हो 2-3 चैप्टर रिवीजन चल गया, लेकिन हम लोग जो है ये तुम्हारा 2-3 चैप्टर, 2 फिजिक्स का चैप्टर है, इतना दिन तक खींचे हैं इसलिए कि हर एक इंडिविजुअल को ये समझ में आ जाए. हर्षित मिश्रा भी नहीं सुनेगा. चल उदित. हाँ, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट एक एक करके सभी को जानते हैं. अच्छा तो है कि सब डर के मारे भाग गया है. चलो जिसको पढ़ना है वो एडेड है. अब वो अच्छा नहीं है. सभी को आता है ना, क्लास में आएगा ही. 16 को भाग के जाएंगे कहाँ. और ये हम ऐसा टीचर हैं कि पीछे पड़े ही रहेंगे जब तक याद नहीं करेगा. पता ही होगा. मिश्रा का वीडियो अब दिखने लगा. 5th से पता. हम तो तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि बच्चे याद नहीं करेंगे. पेन दीजिएगा तब सर लोग से मांग के दीजिए. उधर जाएंगे तब साइन कर देंगे. अब दिखा दीजिएगा जरूर. ये 2 चार्ज ऑब्जेक्ट are brought to each other. The 2 objects always repel each other, always attract each other, either attract or repel each other. प्रत्युष अभी नहीं बोल रहा है. अभी मैम क्वेश्चन पढ़ रही है, तुम्हारा नहीं है अभी. मैम either attract or repel each other. Either attract or repel each other. Either attract or repel each other. हाँ, क्योंकि चार्ज पता ही नहीं है कि both are similarly charged और both are oppositely charged. मैम ये दोनों बहुत खराब है मैम. आप क्वेश्चन पर